Good morning, student. I am Rajendra C. Mori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Moa. Again, welcome to all of you in this online session of class 10th, and today we will learn about the unit number 3 again, because of in the last session we will discuss some of the portions again. But in the previous session we discussed about the some examples, and I also give the uh, particular homework for regarding the all three examples. So again I am repeat these things through this video, and then after we go for the exercise 3.1. So let us start with it. So first of all, here given that one example is suggesting that is the Romila went to stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for rupees 9. Her friend Sonali showed the new variety of pencil and eraser with the Romila, and she also brought 4 pencil and 6 eraser of the same kind for rupees 80. So represent the situation algebraically and graphically. So we also discussed at the last that once if we asked something like that, then algebraically and graphically both things we have to solve it. So first we have to make, using this whole word problem, we have to set one particular equation, so that is known as algebraically, and then after if we solve it with the graph, then it will convert it into the graphical. So here consider that suppose we here consider into the question is that, so Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for rupees 9. So we can't knowing about the costing of it. So let us denote the cost of 1 rupees, 1 pencil, that should be X, and for 1 eraser that should be a Y. So first we have to go for the assumption. पहले हमें assumption करना है, तो assumption में हमें पेंसिल को x एज्यूम करना है और इरेजर को हम y एज्यूम करेंगे. Then the algebraic representation is considered here, that the following equations like 2 pencil and 3 erasers. So obviously we have to use 2x plus 3y, because of 2 pencil मतलब x is for the pencil and y for the eraser. So 2x plus 3y is equal to कितना है 9. Similar way we are going for the another one for 4 pencil and 6 erasers. So 4x plus 6y is equal to 18. So algebraically that is very easy. So among these things we have to using this portion. So 2x plus 3y is equal to 9 and 4x plus 6y is equal to 18. There are 2 equation we found. तो हमने पहले situations को equation में convert किया. अब equation को हम एक टेबल में रखेंगे. लास्ट टाइम भी मैंने बोला था और सभी स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम हुआ था कि हाउ टू पुट इन टू द टेबल. तो टेबल में ऐसे ही वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू आप रख देंगे. x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो ऑब्वियसली y की वैल्यू क्या आएगी, दैट वी चेक्ड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. हम पहले इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन में हम इंसर्ट करेंगे. अब पहले इक्वेशन में जब भी हम इंसर्ट करेंगे तब हमें यहाँ पे ऐसी भी चीज़ दिखाई जाती है. सपोज मान लो कि हियर गिवन दैट, आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है. अब x की वैल्यूज हम उसमें ही रखेंगे. पहले x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, y की वैल्यू क्या ले रहे हैं. x की वैल्यू जब हम 0 ले रहे हैं तब y की वैल्यू इसमें 3 होगी. कैसे होगी, क्योंकि x को हमने सब्जेक्ट बनाया होगा तो हमारा y ऐसे दिखता होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अपनी कैलकुलेशन अपनी बुक में भी कर सकते हैं. x को हमने सब्जेक्ट बनाए तो ऑटोमेटिकली y है वो सामने की साइड चला जाएगा, एंड ऑल्सो भी 9 इज ऑल्सो भी देयर. तो अब हम ऐसे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो x की 0 हम रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली इसी इक्वेशन में y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी. लेट अस चेक इट फर्स्ट. सपोज हम मान ले कि हियर वी आर यूजिंग 2, देन वी आर यूजिंग x फॉर द 0, 3y
and is equal to 9 is there. So we are using 2. Now 2 into 0 obviously 0 हो जाएगा ये, और प्लस 3y इज इक्वल टू 9. तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो ऐसे बनेगा ना कि 3y इज इक्वल टू 9 हुआ. अब 3 को राइट हैंड साइड के ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास 3 बचता है. सो y इज इक्वल टू 3, मतलब पहले हम जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 3. अब जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था वो ऐसे आ रहा था कि यदि हम y को 0 ले लेते तो क्या होता है. सो y को 0 हम जब भी लेंगे तब हमारी पोजीशन क्या होगी. सपोज मान लो कि 2x प्लस 3, अब यहाँ y की जगह पे हम 0 लेंगे और हमारा 9 है. सो 2x मतलब हमारा जो पोजीशन होगा वो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा. मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बचेगा वो ऐसे बचेगा 2x इज इक्वल टू 9. सो x इज इक्वल टू 9/2 इज देयर. सो जैसे x इज इक्वल टू 9/2 आता है obviously we can say that it's a 4.5. सो सेम थिंग वी आर कंसिडर. जब y की वैल्यू 0 ली तब हमारे x की वैल्यू 4.5 आती है. अब तीसरी वैल्यू कोई भी आप ले सकते हो. सपोज मान लो मैंने ऐसा बोला था कि लोअर वैल्यू ही सिलेक्ट करना, तो x की वैल्यू हम ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, 3 सिलेक्ट कर रहे हैं. तो x की वैल्यू अभी हमने 3 सिलेक्ट की है, तो 2 3s प्लस 3y इज इक्वल टू 9. तो x की जगह पे अब हमने 3 लिया है, तो 2 3s कितना होता है 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 होगा. तो अब जो पोजीशन आपकी बनेगी वो ऐसे बनेगी 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हुआ. अब 6 को उस साइड ले जाएंगे तो 3y, 9 में से 6 गया तो 3 बचता है. y इज इक्वल टू 3/3, यानी हमारे पास आंसर आता है 1, क्योंकि ये 3 कट हो जाएगा. तो इस तरीके से हमको ये तीनों वैल्यू है वो चूज़ करनी है. आप यही वैल्यू लो या कोई भी वैल्यू लो, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू. तो अब ये हुआ पहले इक्वेशन के ऊपर. दूसरा इक्वेशन आप ऐसे यूज़ कर सकते हो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, क्योंकि हमने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है. ये पूरा इक्वेशन यदि हम 2 से डिवाइड करें लाइक दैट वे, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 आता है, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 9 आता है. इस तरीके से जब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो हमारी पोजीशन है वो ऐसे डिफाइन होगी. तो सेकंड इक्वेशन के लिए जैसे हमने पहला इक्वेशन किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी इक्वेशन यूज़ करेंगे. पहले x की 0 लेंगे, फिर y की 0 लेंगे. दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है वो कोई भी कंसिडरेशन होता है, तो 0 रखने से y की वैल्यू 3 आती है, 0 रखने से y की वैल्यू 0 रखने से x की वैल्यू 4.5 आती है, और x की वैल्यू 3 रखने से y की वैल्यू 1 आती है. तो सेम थिंग वी हैव टू फाइंड आउट फॉर दैट. अब ये पोजीशन हो जाने के बाद अब हमें एल्जेब्रिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है किसी भी ग्राफ के ऊपर. तब हम ग्राफ पेपर के ऊपर जाएंगे. ग्राफ पेपर के ऊपर हम कैसे यूज़ करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 है. पहला इक्वेशन जब हम यूज़ करेंगे तब हमारे पास पहली वैल्यू 0 जब हमने ली थी, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहले टेबल की. तो हमारे पास पहले टेबल यहाँ पे जो है उसके ऊपर से हम देखते जाएंगे कि 0 जब हमने लिया था तब y की वैल्यू 3 आ रही है. तो उसी चीज़ को हम कंसिडर करते हैं. 0 लिया है मतलब x की वैल्यू 0 है, तब y की वैल्यू क्या आती है 3. मतलब हमारा पहला पोर्शन यहाँ पे 0 है, 0 वैल्यू जब x की है तो y की वैल्यू क्या आती है 3 आती है. मतलब ये पोजीशन 0 यहाँ पे हमें इंडिकेट करना है और 3 यहाँ पे इंडिकेट करना है. तो आपका पहला पोजीशन आ गया 0 एंड 3. दूसरा पोजीशन टेबल में से दूसरी पोजीशन हम जब लेंगे तब जब हमने y की 0 ली थी, मतलब y यहाँ पे 0 है यहाँ पे,
तो y जब 0 लिया था तब x हमारा आता था 4.5, तो यहाँ पे आ गई, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है और एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है। ये दोनों पॉइंट मिलता है, वो दोनों पॉइंट्स को जब हम रूलर की हेल्प से उसको ड्रॉ कर लेंगे तब ऑटोमेटिकली एक पॉइंट यहाँ पे मिलता होगा, एंड दैट इज कंसिडर इज ए 3 and 1। अब देखो दोनों में 3 and 1, दोनों टेबल में 3 and 1 कॉमन होगा, तो ये जो 3 and 1 आता है दैट इज अवर सॉल्यूशन। तो ये हुआ इंटरसेक्टिंग। ये कौन सी लाइन हुई? ऑब्वियसली को इंसिडेंट लाइन हुई। विच लाइन इज कंसिडर? को इंसिडेंट, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दोनों इक्वेशंस इम्प्लीमेंट हो रहे। तो ये चीज़ हुई पहले नंबर्स की ओर। अब जो हम दूसरी चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि बोथ द लाइन आर को इंसाइड। दिस इज सो बिकॉज बोथ द इक्वेशन आर इक्विवेलेंट। So graph of the both equation is a line. Here the ratio of corresponding coefficient and constant term in both of the equation is already stamped, मतलब एक ही लाइन के ऊपर मिलता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि when we are using the graphically representation that time उसका आंसर हमें coincident लाइन ही मिलेगी, और जब हमको algebraically interpretation करना है तो infinite distinct solution हमें मिल सकते हैं, मतलब हमें कितने सारे सॉल्यूशन मिल सकते। सो वंस वी हैव टू यूजिंग दिस कंपैरिजन ऑफ दिस रेशियो, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को हम कंसीडर करें वन बाय वन, तो क्या होगा? एक a1 है, a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन ऐसा बनेगा क्योंकि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हमने कंसिडर कर लिया। वैसे ही सिमिलर इक्वेशन हमारा होगा, वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन की साइड्स हो गई, मतलब हर एक के कोएफिशिएंट को आपको कंसिडर करना है। मतलब 2 वेरिएबल है तो ऑब्वियसली 2 वेरिएबल का कोएफिशिएंट अलग अलग होगा। पहले इक्वेशन में हम a1 b1 और c1 कहेंगे, दूसरे इक्वेशन में हम a2 b2 और c2 कहेंगे। तो जिसका भी रेशियो हमें कंसिडर करना है वो रेशियो एग्जैक्ट इस तरह आपको दिखाई देगा, a1 डिवाइड विथ a2 ऐसा दिखाई देगा, उसके बराबर b1 इज इक्वल टू b2 होगा और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। जब ऐसी पोजीशन को हम कंपेयर करेंगे तब आप देखना है कि पहली पोजीशन आपकी 2/4, दूसरी 3/6 और तीसरी 9/18 आती है, तो ये तीनों का रेशियो है वो लगभग 1/2 आएगा, लाइक दैट वे। तो इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दैट शुड बी ए कंसिस्टेंट। So pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct common solutions. Such a pair is called dependent pair of linear equation in two variable. तो ये जो चीज़ है वो तीनों तीन रूल के ऊपर डिपेंड होती है, और तीनों तीन रूल इसी एग्जाम्पल्स के ऊपर हम कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से पहला एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरह से समझ लो कि कैसे उसको दो टेबल में और दो इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करना है। नाउ दूसरा जो एग्जाम्पल था, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन जियोमेट्रिकली। आपको ग्राफिक एल्जेब्रिकली गिवन ही दिया ही है, तो आपको सीधा टेबल बना के उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। फिर से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आप 0 रख के ये पोजीशन आप सॉल्व कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको इंडिकेट्स दी गई है। मतलब वी हैव टू यूजिंग दिस ऑल बोथ ऑफ द इक्वेशन विथ द टेबल। अब टेबल वैल्यू जो भी आए उसके ऊपर से आप अपने ग्राफ पेपर पे ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये पूरा ग्राफ जो है दैट इज़ डिस्प्लेड एज ए पैरेलल। आपको पैरेलल लाइन 2 मिलेगी। ये तीनों एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी लाइव सेशन में भी आपको बताया था, पर जिसको पता नहीं चला है वो इसी तीन एग्जांपल्स इसी वीडियो में से देख ले। नेक्स्ट थर्ड वन जो पोजीशन थी वो अखिला वाला क्वेश्चन था। वो अखिला वाला क्वेश्चन था, उसमें से हमें पहले
इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद सपोज मान लो कि पहला इक्वेशन हमें मिल गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब क्यों ऐसा मिला? क्योंकि अखिला गोज टू ए फेयर विथ ₹20 एंड वॉन्ट्स टू हैव राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। The number of times she played hoopla is half of the number of rides she had on the giant wheel. So we can say that suppose मान लो कि number of rides that Akila had by X, जितनी भी number of rides है पता नहीं कितनी है, तो number of rides is equal to हमने X मान लिया, and number of times she had hoopla that is also be given. So given that the number of times she played hoopla is half the number of rides, मतलब मान लो कि जो भी राइड्स है उससे नंबर ऑफ टाइम्स शी हैड प्लेड हुपला दैट इज हाफ। सो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 1/2x होगा, क्योंकि वो जितनी बार ही हैज़ टू गोइंग फॉर द राइड्स दैट इज़ द हाफ ऑफ द हुपलास गेम। तो इतनी बार वो हुपला गेम ज़्यादा खेले तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 1/2x। उसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 2 को सामने ले जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू x होगा एंड देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनता है। ये इक्वेशन बन जाने के बाद हम सेकंड पोजीशन यानी सेकंड कंडीशन के ऊपर जाएंगे। ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड गेम ऑफ हुपलास कॉस्ट ₹4। तो x दैट शुड बी कंसिडर 3 एंड y शुड बी consider as a hoopla, so that's why 4y. So 3x plus 4y, that's why we have to spend the 20. So that is 3x plus 4y is equal to 20 हुआ, तो that is the second one is there. So we have a pair of linear equation in two variable x minus 2y, यानी जो हमने पहला इक्वेशन मेंशन किया था ये, एंड सेकंड जो अभी हमने 20 रुपीज़ स्पेंट वाला बनाया वो सेकंड। तो ये दोनों को हम कंसिडर करेंगे और make a pair of linear equation in two variable x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20. Now we solve it by graphically. अब हमें क्या करना है, x minus 2y is equal to 0 है तो हम 2y is equal to x रख देंगे। तो x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी, और y की वैल्यू रखेंगे तब x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये चीज़ हमें मेंशन करनी है। तो ग्राफिकली मेंशन करने के लिए हमें 2 टेबल्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की पहले 0 वैल्यू रखेंगे, फिर x की 2 वैल्यू रखेंगे और बाद में x की 4 वैल्यू रखेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज वी हैव टू ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो वंस जब हम x की 0 रखेंगे तब y की भी 0 आएगी, x की 2 रखेंगे तब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे आएंगे, और then after we have to follow the third values of the x, that time we have to conclude of the value y। तो 0, 2 और 4 ये तीनों वैल्यू हमने x की रखी, तब हमारे पास y की वैल्यू क्या मिली, 0, 1 एंड 2। तो ये पहले इक्वेशन में हमें वैल्यू रखनी थी। अब दूसरी चीज़, जब हम दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, 4 रखेंगे और 8 रखेंगे, तब हमें y की वैल्यू मिलेगी 5, 2 एंड -1। कैसे करना है वो इक्वेशन ऊपर आपको पता है, उसी में सिर्फ x की वैल्यू रखनी है जैसे मैंने आगे इसी वीडियो में बताया। सो देन आफ्टर वी हैव टू फॉलो दिस ऑल 3 क्वेश्चंस हियर, और तीनों 3 क्वेश्चंस के ऊपर आप दोनों टेबल के ऊपर से आप डायरेक्टली जाएंगे अपने ग्राफ के ऊपर। एक ग्राफ आपका ऐसे रिप्रेजेंट होगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी दोनों टेबल में मिली है उसी टेबल्स का इक्वेशंस आप उस पे रख के ये बना सकते हो। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने ये कर लिया था, बट थोड़ा बहुत दिक्कत थी, इसीलिए ये चीज़ पूरी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन, ये तीनों 3 एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, एक पैरेलल लाइन हुई, और एक हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड थर्ड वन कोइंसिडेंट लाइन। ये तीनों 3 कंडीशन को समझने के लिए हमने अभी आपके सामने एक इक्वेशन रखा था, शायद आपको पता हो ना हो,
तो मैं फिर से यहाँ पे वही चीज़ बता रहा हूँ कि तीनों तीन कंडीशन समझने के लिए आपको ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करना है, a1x b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी चीज़, दूसरे इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y, sorry here consider the one, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, same thing a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो ये पूरा इक्वेशन आपका बन गया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप सभी जगह पे देखते हो कि x का कोऑर्डिनेट्स a1 है, y का कोऑर्डिनेट b1 है, पहले इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और c1 जो कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलर वे इन सेकंड वेरिएबल, सेकंड लीनियर इक्वेशन में x का जो आपको वेरिएबल मिलता है दैट इज कोएफिशिएंट मिलता है दैट इज a2, y का b2 एंड कांस्टेंट वैल्यू इज देयर। अब इसी इक्वेशंस को हम आगे बढ़ाते हैं कि सपोज ये दोनों को कंपेयर जब भी करें, क्योंकि इसके ऊपर से ही आपके ज़्यादातर एग्जाम्पल आएंगे, तो कैसे मेंशन हो गया। सपोज मान लो कि हमारे पास तीन कंडीशन होगी, आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो कि सपोज मान लो कि आपके पास a1 और a2 का रेशियो, मतलब दोनों इक्वेशन में पहले x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम रेशियो में रखें तो a1 बाई a2 होगा। इफ इट इज नॉट इक्वल विथ b1 b2, मतलब पहला x का कोएफिशिएंट यदि y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन का यदि इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए वन पर्टिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जब ऐसी पोजीशन होगी, यानी पहला रेशियो का जो भी आंसर आता है वो दूसरे इक्वेशन के दूसरे कोएफिशिएंट वेरिएबल से यदि इक्वल नहीं होता है, देन वी कैन से दैट इट्स ए वन काइंड ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वी कैन से दैट इट्स ए कंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट लाइन होगी और इट हैज़ द मेनी सॉल्यूशन। कितने सारे सॉल्यूशन इसमें मिल सकते हैं। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है दैट टाइम इट्स हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक ही सॉल्यूशन होता है। और यदि यही कंडीशन आगे बढ़ाते तो पहली कंडीशन आपने समझ ली, दैट इज फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ नेक्स्ट वन, सपोज यही कंडीशन हम आगे बढ़ाते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 is not equal to c1 by c2. So that is considered as a parallel line. ये पैरेलल लाइन होगी जब आपकी दो वैल्यूज इक्वल होगी बट कांस्टेंट की वैल्यू आपकी इक्वल नहीं होती। इस कंडीशन को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। ये पैरेलल लाइन जब होगी तब ये भी एक तरह के कंसिडरेशन में कोई भी वैल्यूज़ का आंसर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि इट्स ए वन काइंड ऑफ पैरेलल लाइन। तीसरी जब हमारे पास होती है तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन ऐसी होगी, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 एंड इज इक्वल टू c1 c2। जो आज के पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि तीनों तीन यदि इक्वल है तब वो लाइन होगी कोइंसिडेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। तो तीन कंडीशन आपको रेशियो में याद रखनी है। समझ में आ गया? पहली कंडीशन a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, second a1 a2 is equal to b1 b2 but not equal to c1 c2, that is the second one for the parallel line, and third one for the it is written over here, a1 a2 is equal to b1 b2 is equal to c1 by c2। तो ये तीनों तीन कंडीशन अच्छी तरह से आपको समझने और उसके ऊपर ही आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो लेट अस मूव ऑन इट। So now exercise 3.1 is that Aftab tells the daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Then isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. So algebraic form आपका बन जाता है
there are two person is there, one is Aftab and second one is his daughter. So this is the solution start from here. So everyone has to write this particular solution for this question. 7 years ago मतलब प्रेजेंट एज हमें कंसिडर्ड करनी है, तो प्रेजेंट एज अभी आफ्ताब की होगी x, मान लो कि x है, तो his daughter says it should be a y. So age is 7 years ago, मतलब हमें 7 years आगे की जो एज है वो बतानी हो, तो हमें अभी एग्जिस्टिंग मतलब प्रेजेंट एज हमने मान ली है x, तो ऑब्वियसली 7 ईयर एगो का मतलब होता है पास्ट की, तो ऑब्वियसली x में से 7 सबट्रैक्ट होगा. तो इस तरीके से पहली पोजीशन प्रेजेंट एज के ऊपर से हमने आफ्ताब x-7 हुआ. सेकंड कंडीशन एज पर द क्वेश्चन इज दैट एज 3 years फ्रॉम नाउ, तो आपकी अभी पोजीशन x है, तो 3 years मतलब फ्यूचर कितना, मतलब एडिशन होगा तो x+3 होगा. सिमिलर वे इज डॉटर y, y-7 एंड y+3. तो ये चीज़ है हमने पहले एज्यूम कर ली, इसी तरीके से हमने एल्जेब्रिक फॉर्म डिसाइड कर लिया. अब एल्जेब्रिक फॉर्म डिसाइड हो जाने के बाद उसको हम ग्राफिकली पे जाने के लिए पहले हम इक्वेशन फॉर्म में उसको रखना जरूरी होता है. तो अब represent the situation this algebraically, just we have to put one table over here, then after we just put the another one thing. 7 years ago the age of Aftab x-7 was 7 times as old as his daughter were the x-7. So line L1 it should be, मतलब पहली लाइन जो आपकी बनेगी वो x-7 is equal to 7 times है, तो 7 into y-7 होगा क्योंकि उसकी डॉटर से 7 टाइम्स वो ज़्यादा है. तो उसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें पहला इक्वेशन x-7y + 42 इज इक्वल टू 0 मिलेगा. सेकंड पोजीशन आफ्टर 3 years आफ्ताब शेड बी 3 times as old as the daughter will be. So that condition if we added for the line 2 is there. So x+3 is 3 into y+3 होगा. आप इस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ लो कैसे सॉल्यूशन मैंने फाइंड किया, उसी तरीके से आपका भी माइंड है उस लॉजिक के ऊपर कंसंट्रेट होना चाहिए. मतलब वंस वी हैव टू गॉट दिस टू इक्वेशन इट इज़ इजी फॉर द ग्राफिकल, अदरवाइज वी कांट गो फॉर द ग्राफिकल सॉल्यूशन. तो हमें पहली जो चीज़ करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको कैसे मेंशन करें. लास्ट ईयर ये सभी पोर्शंस को रिमूव कर दिया गया था, हो सके कि इस बार भी ये सब चीज़ ना हो, बट अभी तो हमारे पास फुल सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू वी डिस्कस्ड ऑल द सिचुएशन. ओके, तो पहले दो हमें 1 और 2 मिल गया, दोनों इक्वेशंस को हम कंसिडर करेंगे. एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन मैटर, ग्राफिकली मेथड्स हाउ वी रिप्रेजेंट इट. जस्ट वी हैव टू यूज़ द सेकंड वन ग्राफिकल मेथड. एल्जेब्रिकली हो गया तो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे. पहला x-7y + 42 इज इक्वल टू 0. इसमें से हम किसी एक को सब्जेक्ट बना देंगे, कोई एक वेरिएबल को. सपोज यहाँ पे मान लो कि y को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो y इज इक्वल टू x+42/7 होगा. तो x की जब वैल्यू होगी तो y को हम टेबल में भी ऐसा रख सकते हैं कि x+42 डिवाइड विथ 7, लाइक दैट वे. बट आपको जैसे रूटीन में यूज़ करते हो वैसे भी कर सकते हो. देयर इज़ नो नीड टू यूज़ लाइक दैट वे. x-7y + 42 इज इक्वल टू 0. आप सिंपल सी x की वैल्यू लो और y की वैल्यू फाइंड करते जाओ और बना दो टेबल. मैक्सिमम मिनिमम यू हैव टू यूज़ 2 और मैक्सिमम यू हैव टू टेक द 3 वैल्यूज़ इन ईच टेबल. तो जैसे ही आप इसी टाइप का इक्वेशन सॉल्व करते हो तब आपको ये इजीली पता चल जाता है कि कैसे हम उसको टेबल में यूज़ करेंगे. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहली जो टेबल की वैल्यू है पहले इक्वेशन में हम x की 0 वैल्यू लेते हैं, फिर 7, फिर 35 एंड -7, यानी 4 लेने की ज़रूरत नहीं होती. यदि आप 2 या 3 मैक्सिमम वैल्यू से भी अपना टेबल की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो और इसमें रैंडमली कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो. हाँ,
बट ध्यान रहे कि इस इक्वेशन में जब रखेंगे आप तो इसकी वैल्यू प्योरली आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी हैविंग द प्रॉब्लमेटिक। समझ में आ गया? तो ये पहला टेबल आपको अच्छी तरह से लिख लो, ये भी चीज़। दूसरी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, वो दूसरे इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और उसका टेबल में x की 0, फिर बाद में 6, फिर 3, 30, देन 42 वैल्यूज जब हम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू अकॉर्डिंगली दैट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो एक चीज़ हमारे सामने आ गई, दो टेबल, ये दोनों टेबल है, वो टेबल के ऊपर से ही हमें ग्राफ बनाना है। तो x और y की वैल्यू हम एक लाइन जो ऊपर की लाइन है वो पहली टेबल की बनेगी, दूसरी लाइन जो होगी वो दूसरे टेबल से आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो ये हुआ आपका दोनों टेबल और बाद में आपका एक ग्राफ, जो ग्राफ आपको अच्छी तरह से दिखाई देता है। और दूसरी चीज़, जब भी आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर स्केल लिखना मत भूलो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट लिया है यहाँ पे, और वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। जो भी चीज़ आप मेंशन कर रहे हो वो स्पेसिफिकली ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यदि आप ग्राफ पे ऊपर ये रिप्रेजेंट नहीं करते हो सो दैट इज ऑल्सो कटेड द मार्क। आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इफ़ यू हैव टू करेक्ट putting this graph, although you have to not get the full marks of 5, okay? तो ये अच्छी तरह से याद रख लो, ये कैसे उसका ग्राफ रिप्रेजेंट होता है आप देख सकते हो। ये पूरी तरीके से आपको डिस्प्ले कराने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको विजिबल है, क्योंकि आपके मेनली तो ये दो टेबल है, उस टेबल के वैल्यूज़ आपने पहले लिख दिए, वही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करनी है। तो जैसे आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते। देखो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन हो रहा है P4212 के ऊपर, तो ये आपका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले जो पार्ट हुआ उससे आपको एजिस फाइंड मिल गई कि 12 एजिस y जिसका आपने एज्यूम किया था वो y कोऑर्डिनेट्स में जिसकी वैल्यू 12 आती है वो उसकी एज होगी, और 42 जो x में आपने एज्यूम किया था उसकी वैल्यू होगी। तो ये दोनों चीज़ से आपने अच्छी तरह से ये फाइंड किया। तो ये जो पूरा पहला क्वेश्चन मैंने इलस्ट्रेट किया है एज पर द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसने भी 1.1 एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है उसको पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल इसीलिए बताया है कि आप उसको समझ सके और बाद में उसको लिख सके। सो टुडे यू हैव टू कवर दिस एक्सरसाइज 3.1 in book as well as into the graph paper, and then you have to send. Is it clear? So today's homework, all 3 example, last time जिसने भी example पूरे नहीं लिखे थे, नहीं आते थे, वो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने तीनों एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेन किए हैं, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरीके से आपको सेकंड थर्ड आप अपनी तरीके से 3.1 का करेंगे, और यू हैव टू सेंड एस टुडेज होमवर्क। सो आई होप सो दैट everyone is got what I am telling in this particular videos. We will meet very soon into the next lecture. Take care at your home. Thank you very much.